God's word is the truth. वो सच्चाई है. There's nothing broken, nothing missing. Is full and final. How many believe this? कौन विश्वास करते हैं? Amen. Amen. I'll wait for a while. All the kids, please go to this room over there. They're racing for this program coming ahead. So all the kids, please go. Very good. Sorry, buildings are beauty. No, we love the kids, okay? But that is silent because we both very happy. Amen. Hey, did you know the song that we are singing? जब मैं western side में जब मैं Neni guys, Vishal the Park, Vishal, Neni or Ba? Where from? Ba, अच्छा Ba is fine. Neni के लिए, they're nice people, okay? वे लोग गीत गा रहे थे, हम लोग गीत कर रहे जब मैं पहले मुर्दा था, तूने दाढ़ी नहीं बेचा, राइट? तो हम भी ज्वाइनिंग किया उसमें, तो लोग हम नवारा तो लोग ज्वाइन गाए तो मैं भी वही गीत गाता था, और कौन सा गीत गाता था? जब मैं पहले मुर्गा था, तूने दाढ़ी नहीं बेचा, तो लोग कहते हैं तो पहले ऊपर बना था, बोला वो फॉलोइंग जो लोग गाते हैं गाते, ये लोग कोई नहीं बोला मुर्गा नहीं बोलो, मुर्दा बोलो। हाँ भाई, if you don't know, you make mistake, right? बोले मुर्गा था, amen, I know. Anyway, let's come back, guys, come back, where was I? So when you guys sing, जब लोग हमारे बचपन के जब गीत गाते हो अच्छे गाइए, अच्छे आप लोग अच्छे गाते हैं, मुर्गा मत बोला, मुर्दा, amen. Hallelujah. I'll talk to you this morning about one of the greatest teaching in the Bible. सबसे भारी चीज तो बाइबल में प्रवेश हमको और आपको दिया है. Biggest teaching, there is no other teaching as powerful as big as the one I'm about to share with you. Anybody give a guess? कौन सा teaching है वो? Love. Who said it? Madhu. Exactly. Exactly. प्रेम के बारे में बात करूंगा. And ये जो प्रेम है, it is not about a human love के बारे में. जो human love है, वो थोड़ा कुछ गड़बड़ी इसमें. Strings attached. Honey, no money, no funny. कुछ लेना तो you bribe your spouse, husband. This is not the kind of love God is talking about. Or friends love one another, or parents love their children, or wife and husband. ये प्रेम के बारे में बात नहीं करता हूँ. Those are not the love I'm talking about. That's fine. But I'm talking about from the Bible. वचन में क्या लिखा गया? And this is called agape love. Agape is pure, undefiled love from the heart of God for His children. ये प्रेम जो मैं बात करता हूँ, ये यीशु की ओर से आता है, गॉड की ओर से आता है, और गॉड चाहता है कि तुम इसी तरह लोग से तुम अपना रिश्ता रखो. And we will say, we love you, we love people, right? Show me how you love us. बताइए, show करिए. Now, this is going to be surprising to some of us, but because we should do that, okay? अगर हम किसी लोग से प्रेम करते हैं, तो ऐसे करिए, कुछ ways, कुछ तरह से हम लोग को प्रेम कर सकते हैं. And if you can't, love people, then हमारा मसीहत is questionable. कि तुम कैसा मसीह हो भाई? तुम लोग से प्रेम करते, तुम इतने अंदर में आपका नफरत है, तो क्या आपका मसीह ऐसा है? लोग बोलेंगे आप. So we need to be very careful, okay? अंदर में तेरा प्रेम होना चाहिए. If possible, not possible, get an index card. If you go home, go to all places or somewhere, buy a set of index card. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8, please write it down and learn by heart. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8, by heart सीख लीजिए. वो मेरा टाइटल नहीं है, लेकिन I'll just let it teach. I'll teach you with this. If you love somebody, तुम उनके लिए कुछ करने के लिए तैयार हो. Amen. If you love somebody, कोई तरह का तुम उसके अगेंस्ट में नहीं खड़ा हो. If you love somebody, तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो.
बिकॉज तुम इतना प्रेम रखते हो उनसे. लव बहुत पावरफुल है. देयर वाज अ लेडी इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. उनका डैड उनका मम को गैस चैम्बर में उनका मारा गया था बाय नाजी जर्मनी. और कितने फैमिली मेंबर को वो हिटलर के जो ऐसे ट्रूप्स थे आकर खत्म कर दिया. तो या वो जब युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तब अब रेप हो रहा है जगह जगह पर. अब सब लोग मिलकर ले नेशंस. तब ये व्यक्ति का नाम था कोरी टेन बून. नाम तो नाम उनका. प्लीज रीड अबाउट इट. वेरी पावरफुल स्टोरी. टेरी कोन बून वो अपना प्रचार कर रही थी. तो सर्विस खत्म हो गई तो उनके सामने एक नाजी ऑफिसर आ रहा है लेकिन वो सिविलियन क्लोज में. तो उसने आकर हाथ मिलाया उसके दिया और कहा प्रेस द लॉर्ड. तब ये टेरी कॉनबून ने देखा यही व्यक्ति था जो उनका माँ बाप को कत्ल किया था. उसने कहा आई एम नॉट फॉरगिविंग यू. अपने हाथ पीछे कर लिया उसने. तब बट शी सेड समथिंग. से गॉड मैं कुछ क्षमा नहीं कर पाऊंगा लेकिन तू क्षमा कर दे. तो जैसे उसने अपने हाथ को आगे उठाया ऐसे समथिंग लाइक इलेक्ट्रिक करंट उनके हाथ में गया और शेक किया. Now we may not understand this guys. आप ये शायद नहीं समझ पाओगे, कोई बात नहीं. अब कुछ लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. ये प्रेम का जो फोर्स है, जो प्रेम का ताकत है, द पावर ऑफ लव इतने कड़े होते हैं कि कुछ भी कर सकता है. See, God will forgive. Human beings will not forgive. जब डेविड के ऊपर समस्या किंग दाऊद तो he messed up. तो उसने कहा लो गॉड ने चॉइस दिया. यू वांट मी टू पनिश यू और यू वांट मैन. उसने कहा इफ आई गो टू मैन, अगर मैं मनुष्य के पास जाऊंगा तो वो तो मुझे पूरे बदला देंगे. इफ आई गो टू अदर थिंग्स maybe I don't get real help, but I choose to be punished by God. He said, God, I'll come to you because God is merciful. God is kind. God is forgiving, slow to get angry, rich in love, plenty in mercy. God can wait. So he said, God, I'll come to you. And God dealt with King David because he messed up. My friends, प्रेम इतने ताकतवर, इतने बलवान, इतने पावरफुल है. सभी मसीह को प्रैक्टिस करना चाहिए घर पर. Start from your own family and then with your church. Then जहाँ तुम काम करते हो, people must know. It's not easy, I'm telling you, but you need to practice it. Okay? एक तुम्हें करना होगा, तभी आप बलवान मसीह बनोगे. जब हम मसीह नहीं थे, तो हमारे अंदर में क्या था? नफरत, बदला हम लाएंगे, हम तो कत्ल करेंगे, खत्म करेंगे. When I was a Christian, I could just knock people down, brother. Just do not this that. इतने अंदर में मेरा आँख भर रहा था रिवेंज के लिए, बदला के लिए. But when I became a Christian, God ने मेरे हार्ट को चेंज कर दिया. इतने बदला अंदर में प्रेम डाल दिया. उसने कहा तो लोग से प्रेम रख मेरे सेवक, अदरवाइज मैं आपको ऊपर रूप में नहीं काटला पाऊंगा. तो लोग से प्रेम रख, उनको क्षमा कर. Now if you love somebody, then you will forgive him. मेरा first point है Mark chapter 11 verse 25. When you stand praying, forgive if you have against anybody. जब तुम किसी से प्रेम रखते हो तो तुम उनके क्षमा करो. Before you leave this building, जाने से पहले यदि तेरे अगेंस्ट में किसी ने कुछ बोला आपको या तू किसी को कुछ कहा है, leave it right over here, not in the school building. Means give it to the cross. Lord, मैं ये छोड़ता हूँ, ये सब चीज आज से मैं प्रेम में चलूंगा, मैं उनको क्षमा करता हूँ. Can you forgive? I'm not saying you're not doing it. I'm not saying you are not something bad. But I'm trying to say what God said to say to do it. What did he say, Peter? और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे. देखिए दोस्तों, अगर फैमिली आपस में वाइफ एंड हस्बैंड है, लड़के चिल्ड्रन है, माँ बाप है, अगर ये जो टीचिंग आपके दिल में बैठ जाए,
आपको तमाम आशीषों से God भर देगा. Amen. He'll fill you with a lot of blessing, brother. You need to forgive. It's hard. I'm telling you, कड़ा है, but तुम्हें करना होगा. ये कोई option नहीं है ना. Jesus didn't say it's gonna be easy for you. He said, in this world you'll have tribulation. समस्या होगा, but be of good cheer. I have overcome the world. He overcame the world, so he can give us power to overcome the world. Meaning, हम भी जयवंत हो सकते हैं उनके प्रेम से. So, if your husband doesn't talk to you, you talk to him. If your spouse is bad and hard on you, you be nice to your spouse and be blessing to him. अगर वो ज़्यादा बात करता है, तू कम बात कर. और गुस्सा करता है, तू शांत हो जा. You need to be careful because it's going to affect your relationship. अगर उसने कहा कि तुम मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया है, and I'm expecting some gift. You love me? Don't demand. Love doesn't demand. Okay? Love doesn't demand things. Love gives. You better start giving things out to your spouses or to your family or to your children, even to your pastor, because you love him, right? Amen. How many of you love your pastor? Can I see your hands? Okay, I forgive you. I know you're joking, but I'm serious. I love you guys. अगर तुम प्रेम में चलोगे दोस्तों, तुम गॉड के पसंद करोगे. You are following the first commandment. First commandment, love God. Second thing, लोग से प्रेम रखना. Very powerful चीज है बताइए. ये सारे जितने commandments को एक ही वेश में लेकर आ गया प्रभु यीशु ने. Mark chapter 12, verse 12, can't remember, it's somewhere there. 12:28 to 31. God wants us to love one another without any condition. हाँ, कभी-कभी ऐसे होता है कि जब हम प्रेम रखते हैं तो लोग हमको और बात बोलते हैं, निराश करते हैं, निंदा करते हैं और उल्टे बात बोलते हैं तो देखिए मन करता है, Lord enough, I just suffered for 3 weeks, now at 4th week I'm begging, enough, no more love, let me fix him first and I come back love again. But you are a Christian, right? So why you will like that? Hold on, God is about to do a breakthrough. God breakthrough करने वाला तो शांत हो जाइए. God उनको इतने डील करेगा कि वही जानेगा कि क्या हो रहा है. मुझे मालूम है एक व्यक्ति मुझे आया, उसने कहा पास्टर मेरे हस्बैंड ने मुझको ऐसे बोला कि इट्स नॉट राइट. मैंने क्या आई वोंट गो इनटू डिटेल बट आई जस्ट शेयर व्हाट हैपेंड. मैं चल रहा था किसी पहाड़ पर, तो शी इज अ लेडी, आई मीन कम ऑन मैन, तुम पहाड़ चढ़ सकते हो तो वुमन करे नहीं आ सकता बिकॉज वो इतने प्रैक्टिस नहीं किया है. तुम इतनी प्रैक्टिस करते हो तो तुम क्यों इनके बोल रहे हो. तो वो हस्बैंड कितना सही क्या बोल रही है, तेरा पैर का पटेगा तो चल नहीं पाती है. अभी सारी तो कैसे चले हो तू, तो माउंट सा नहीं तो पहाड़. फिर नेक्स्ट अब तो न्यास करना होगा आपको, क्या हो गया आपको. अरे भाई तो ये बीवी खराब लगी तो प्रार्थना करिए, रो रही थी, पास्टर लॉर्ड हम प्रेइंग, तो उनके बातचीत कर. तो शी सेड 2 weeks later, जिस तरह से मेरे पैर में दर्द हो रहा था उसी तरह उनके पैर में दर्द हो रहा है. You see, you had somebody, it comes back to you. Amen. It comes back to you. Bible का principle है, law of reciprocal. You do something to others, it comes back to you. तुम अच्छाई काम किया है, घुमाकर आपको अच्छा होगा. तुम बुराई काम किया है, घुमाकर आपकी बुराई होगा. You love somebody, somebody will love you. You hate somebody, somebody will hate you too. Don't do that. People have said things to me. Okay, God, I'll pray for you. Good boy, yeah, good boy. But I still show my love for you. Guess what? God is pouring love upon you. ये फिंगर शोकी, ये ऐसे कर रहा, ये ऐसे कर रहा, ये ऐसे कर रहा. देखिए, ये ऐसे है. ये हाथ देखिए, अपना हाथ ऐसे देखिए. Do your hand like this. Do it. भाभी तुम भी करो. अच्छा देखिए, ये 3 हाथ कहाँ पर कोई पॉइंट करता है? आपको. That means आप ज़्यादा फॉल्ट पे आप है. देखो तुम सबकी बुराई करते हो, तुम सबसे बड़ी फॉल्ट तुम आपका है. और एक को जो सबसे भारी हुई है वो तो कोट तुम भी फॉल्ट पे है. देखिए तुम भी फॉल्ट पे है और ये तुम है. ये सब मत करिए. If you love somebody, don't do that.
प्रेम रखते हो तो ये काम करने से फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और कुछ लोग जब बैठते हैं आपस में, मान लीजिए 5-6 लोग बैठ के, अब क्या हो रहा है, उन लोगों को प्रार्थना करना है, प्रार्थना शुरू भी नहीं हुआ। हाँ भैया, 1 घंटा वे लोग इतने महाभारत की इतने समस्या एक शुरू किए, ये बेगी दीदी तुम जनता उसका तमाशा पूछे थे, अरे अब तो उसके हम तो क्या बताएं उसकी, अरे उसकी पेज देखा तो पता वाली पिछले गुजरात criticizing them A to Z, they have time to criticize, उनके फॉल्ट खोजना, उनके बुराई करना, उनके निंदा करना, सब कुछ 1 घंटा कर ले। आप दिन में पता चलेगा, ये भैया 1 घंटा तुम वेस्ट कर दिया और तुम फिर भी पता किया, ये अनजस्टिस, इनजस्टिस टू योरसेल्फ। 1 घंटा तुम उसके प्रार्थना करना, अगर तुम हुआ ना हुआ तुम उनके लिए दुआ किया, गॉड आपको तमाम आशीषों से भर देगा दोस्तों। I went to a place to pray like that, brother. Oh, that lady just fighting in Bindu. She's a similar nose in Nandera. She is, I don't know, she's passed away. Long time ago. अब प्रार्थना सभा शुरू होना है 7 o'clock. अब मैंने प्रार्थना शुरू भी नहीं किया। 45 minutes उसने सारे चेस को ले गया था, पास्टर को ले गया था, तब आपकी बुराई करते हम बोला आपका प्रार्थना करेंगे। तो 45 मिनट बाद तो हम प्रार्थना किया, 10 मिनट हमारा सिस्टर वी टू गो। इफ यू लव समबडी यू विल नॉट अक्यूज एनीबॉडी, यू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक विदाउट अक्यूजिंग। ओह ब्रदर, आई एम रिपीटिंग माय फर्स्ट पॉइंट, मैंने मॉर्निंग में शेयर किया। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 में लिखा गया है, एवरीवन शुड बी क्विक टू हियर। पढ़िए भाई जेम्स, मतलब पीटर, जेम्स 1:19। अच्छे बात ये सुनिए, कितने अच्छे बात याकूब ने लिखा हमारे लिए। अगर बाइबल नहीं है सुनिए, गौर से सुनिए। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। क्रोध में धीमा हो मतलब सुनिए, कोई कुछ हो रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई तुलिस तुम सुनिए क्या बोल रहा है, बात बंद कर, ये सब कुछ पता नहीं होता, तुम सुनिए क्या बोल रहा है। याकूब ने कहा इफ यू आर गुड लिसनर तुम आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। सेकंड थिंग, स्लो टू गेट एंग्री, तुम गुस्सा मत कर। गुस्सा आ जाता है, विच इज ट्रू, लेकिन गुस्सा को तुम थाम ले। गुस्सा में उल्टे उल्टे काम मत कर, तेरा ही नाश होगा, तेरा ही प्रॉब्लम होगा। नाश नहीं, लेकिन यू गोना हेट योरसेल्फ, यू ओनली गोना हेट योरसेल्फ, यू गेट एंग्री। कुछ लोग इतने गुस्सा करते हैं भाई, उनके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया। I mean, anger is okay, it is control anger, okay? Control means I don't get angry sometimes because अगर मैं कुछ काम करता हूँ और कोई बाधा डालता है, I don't like it. You better do it or you help me. If you can't do it, just sit down and pray for me. But don't make my work difficult because it's hard, very difficult, guys. I don't appreciate this. But I love people, I'll correct them. गुस्सा को थाम लीजिए। गुस्सा में तू उल्टे काम पाप मत करिए, अदरवाइज शैतान आपको नॉकआउट करेगा। रिंग में तुम जीत नहीं पाओगे। स्लो टू गेट एंग्री, स्लो टू स्पीक, बात कम करिए लेकिन क्विक टू लिसन, तुम सुनिए क्या बोल रहा है। इफ यू आर अ गुड लिसनर यू आर लविंग पीपल। तब जब तुम प्रेम करते हो तो तुम ऐसे करिए, स्पीक विदाउट अक्यूजिंग। एंड एक वेज टू लव, ओके? तुम जब प्रेम करते हो तब जब कोई बात कर रहा है, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 18 पूरे पढ़िए, आई मीन टू मनी वर्सेस देयर। लिसन विदाउट इंटरप्टिंग, जब कोई बात कर रहा है तो उसके बाद मत काटिए। हैव यू मेट सम पीपल लाइक दैट? तुम कुछ बात कर रहे हैं भाई, ही ओवरराइड्स यू, तुम 2 बात किया, 10 बात कर रहे हैं। अरे बोला भाई तो शांत हो जाए, शांत कर बोलो, वो शांत होती ही नहीं, उनके मुंह में ऐसा जबान लगा हुआ लाइक ऑटोमेटिक मशीन को। माय गॉड, calm down. Some people don't want. If you love somebody, you listen without interrupting. This is way to love, right? Third point. अगर तुम प्रेम करते हो
तो तू प्रार्थना कर, प्रे विदाउट सीजिंग। पढ़िए भाई फिर Colossians 1:9, Colossians chapter 1 verse 9। ये दो पॉइंट से मैं खत्म करूंगा। Colossians chapter 1 verse 9। तुम प्रेम करते हो तो गॉड ने कहा है मेरा कमांडमेंट ही मेरा नेम है, तुम प्रार्थना कर। कितने लोग आज यहाँ पर फेल हो गए? प्रार्थना का जब समय आता है तो साथ में बैठे टीवी के सामने, जब प्रार्थना समय खाने सो गए, प्रार्थना समय और भी भागे। ये काम से आपका फायदा नहीं होगा। जब प्रेम रखते हैं तो गॉड ने कहा तुम प्रार्थना कर अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने देश के लिए तुम प्रार्थना कर। तो प्रार्थना करते ही नहीं तो मैं कैसे आपका जवाब दूं? प्रे ब्रदर। इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। सो प्रार्थना में हमेशा आगे बढ़िए। फैमिली प्रे टुगेदर। Invite your pastor to your house. Say, Pastor, you and your spouse come this Tuesday night. Pray with me for half an hour, Pastor. Pray. I will help you out, guys. Pray. Pray with your other Christians. Pray with your mom and dad. Pray with your friends. Pray. प्रार्थना करिए, बहुत अच्छी चीज है ये। Last one. अगर तुम किसी से प्रेम रखते हो, way to love, then you promise without forgetting. अगर तुम कुछ वादा किया है, बोलो मत। काफी लोग ने प्रॉमिस किया लेकिन वो आज तक कुछ किए भी नहीं। ट्रू हो ना? हमें बहुत गर्व लगे अमेरिका में कुछ लोग को ट्रस्ट करना, बड़े कड़े भी है। फिर में ट्रस्ट करा तो कुछ लोग बदल दिए, बिकॉज दुनिया चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज हो गई। जब यहाँ पर आया तो लोग भी चेंज हो लगे, तो ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। बट यू नो, इफ यू मेक अ प्रॉमिस टू योर लव्ड वंस, you better keep your promise. अगर तुम नहीं करा वो प्रॉमिस, कीप किया तो अच्छी बात नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझको आउट दिया, प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस से और ऊपर चल गया। आउट क्या है? कसम खा गया। हम लोग तुम कसम नहीं खाओ तुम खाना खाओ। एक चीज था, उसने कहा पास्टर मैं आउट देता हूं कि ये काम हो जाए तो मैं आपको ब्लेस करूंगा। तो मैंने प्रार्थना किया, वो काम बन गया। ओ बात तो भूल गई नहीं, वो क्या कर, लेकिन उसने आज तक नहीं किया। तो बेहतर है कि तुम प्रॉमिस करना नहीं करो, राइट? We don't have anybody belonging to things. No, we don't have that. But you made an oath to God. ये काम मत करिए। But if you promise somebody something, don't forget, you better do it. You love him, right? So, do it. Look at Proverbs chapter 13, verse 12. पढ़िए। Proverbs 13:12 में क्या लिखा है? जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। देखिए अच्छी बात लिखा कि जब तुमने कुछ वादा किया है वो वादा को निभाइए। Amen. That's love, brother. That's real love. Amen. Praise the Lord. And I'm done, brother. And before I go, I'm going to conclude with this. Proverbs 21:26. Proverbs 21:26. You can read to me in English and then Hindi book. ये पढ़िए, काफी अच्छी बात है। In conclusion. Proverbs 21:26. It's Sister Sunan. Loud Yoraj. Somebody English पढ़िए। बड़े अच्छे teaching, beautiful teaching, my friends. He coveteth greedily all the day long, but the righteous giveth and spareth not. Peter. कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। See, the mark of a Christian is giving. Give without sparing. मतलब ये है कि जब मसीह लोग देते हैं और देना चाहिए तो स्ट्रिंग्स या
कुड़कुड़ा कर मत दीजिए, दिल से हंसी खुशी से तुम दीजिए गॉड के लिए या उनके काम के लिए. Now we know in our church members and most of you are great givers. आप देने में नंबर 1 है, मैं जानता हूँ, because I'm watching you guys. आप देने में कभी पीछे मत हटना, देने में हमेशा आगे बढ़ना, क्योंकि ये गॉड का मेथड है लोग से डील करने के लिए. अगर जिस दिन आप पीछे हट गए तो ये मसीहत का वेज नहीं है, मेथड नहीं है, एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये गॉड का मेथड नहीं है. गॉड का मेथड है तो दे, बिकॉज गॉड ने हमको ये चीज सिखाया है कि उसने अपने लौता पुत्र को दे दिया. ही इज अ गिवर, उसने दिया हमें. एंड इफ ही इज अ गिवर वी फॉलो हिज एग्जाम्पल, वी ऑल्सो गिव. व्हाट डू यू गिव? यू गिव योर टाइम टू गॉड. कोई किसी का समस्या है, प्रॉब्लम है, कुछ नीड है, and he shares with you, you pray about it, but then go around and say, brother, sister, this is for you. You know, when you give, you touch somebody's heart. One person I went to pray last week in somebody's house. She's in high school. तो मैंने लगातार उसको 3-4 weeks प्रार्थना किया. तो लास्ट ट्यूसडे नाइट वो एक बैग में मुझको गिफ्ट ला कर दिया. कितनी अच्छी चीज ला कर दिया मेरे पास्टर, ये आपके लिए. It touched my heart. I'm not a gift, but I prayed for her for so many days, and she appreciated my prayer for her, and she gave me a small gift. Pastor, धन्यवाद. I really thank you, Pastor. You see, giving touches somebody's heart. एक व्यक्ति came very poor, very low. I know them. Christmas Day I said, Pastor, thank you, Pastor, तुमने इतने महान काम किया. I want to bless you with a shake. Oh my God, it touched my heart. I almost cried. I said, God, this person has showed his love for me. प्रेम को शो किया. My friends, there is a way to love people. You love your spouse, give her something, buy some gift to her, okay? If you love your husband, buy some things good for her, okay? Make some nice food for your spouse. Say, honey, I'll go. Show your prayer. If you don't have a spouse or a husband, don't worry. Do God से प्रेयर कर, अपने बच्चे से प्रेयर कर, और उनके लिए अच्छा काम कर. Amen. God is love. We need to follow this method. Amen. How many learn something tonight? This afternoon. Learn something? Good. हम सब खड़े हो जाए. Hallelujah. सब यहाँ पर दें. Everybody stand up. Everybody stand up. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Father, we worship you, God. We thank you. तेरे वचन सही है यीशु. वचन तुझे लिखा होता है कि जो आप पर विश्वास करता है वो नाश ना होता परंतु आनंद की बात करो. अब तूने ये भी कहा है बाइबल कि मैं प्रेम and you should love one another too. आज मेरा प्रार्थना कि लोग लव करें पिता, प्रेम रखें दिल से पिता, लोग क्षमा कर दे पिता, और जीवन में आने वाले प्रभु तेरा प्यार है मां, तेरा प्यार है मां. जब मैं पहले मुझा था तूने डाले मुझमें था. क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार. जय जयकार, मैं दुआ करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए हर मनोकामना दिल की इच्छा को पूरा कर दे पिता. अगर कुछ इस दिल में कुछ टूटी का कुछ कमी घटी है पिता, उनको पूरा कर दे पिता. अंदर में प्रेम डाल दे पिता, शांति लेकर आ पिता. सारे दुख सारे उलझन को निकाल दे यीशु आज. हे प्रभु, यहाँ से जब जाए पिता, उस प्रेम को बांटे, फैमिली में, पड़ोसी में, सब जगह प्रेम में चले पिता.
जैसे आप प्रेमी है प्रभु, रहमा बाइबल जैसे मेंबर भी प्रेम में चले पिता। And they can do better or they doing good, they can do better or। हे प्रभु तुम मदद कर। और शैतान का वार इनके ऊपर ना आए पिता। मैं सबको जो लोग नहीं भी आए उनको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अगर कोई बीमार है प्रभु, उनका दुआ करता हूँ। Anybody sick, want to pray for? हाथ उठाइए। Lift your hand up। ओके, अपने हाथ खाते रखिए, मैं दुआ करता हूँ। पिता मैं दुआ करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जिनके हाथ ऊपर गए, यीशु क्रिस्ट के नाम से हर एक पीड़ा, हर एक पेन इस शरीर को छोड़ दे और बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु तेरे नाम से सब कुछ हो सकता है। आज मैं दुआ करता हूँ प्रभु कि हर एक पीड़ा, हर एक शैतान का आक्रमण, हर एक दुख इस शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाए। बिलीव इट सेफ मी, मैं विश्वास करता हूँ यीशु ख्रिस्त के नाम से जैसे पास्टर ने मेरे लिए दुआ किया, चंगाई शुरू हुआ। धन्यवाद यीशु, इन जीसस नेम, आमीन।